Dear students, I am starting the next part of chapter number 5. It is part 2. Earlier video we discussed about the Al-Baruni and Ibn Battuta. The next famous traveler who came to India in 17th century was Francois Bernier. Okay. Apart from Francois Bernier, there were other European travelers who came to India. In these travelers, some of the Portuguese travelers, for example Duarte Barbosa, this is written here, and Roberto Nobili, and another French traveler who was the jeweler also, Baptiste Tavernier, who traveled to India at least 6 times. Another European traveler was Manucci, who belonged to Italy. He came to India and settled down here only. He never went back to Europe. So, apart from Bernier, from Portugal, Barbosa, Roberto Nobili, from France, Tavernier, who was the jeweler, and from Italy, the Manucci was the famous travelers who came to India and who wrote about the India's social, political and economic conditions. Now we discuss about the Francois Bernier. Francois Bernier was a French person. He was a multi-versatile personality, multi-dimensional personality. He was a doctor, philosopher, historian also. He spent 12 years in India from 1656 to 1668. He was related with the Mughal court as a physician of Dara Shikoh, who was the eldest son of Emperor Shah Jahan of that time. So, Bernier was related with the Dara Shikoh in the earlier time. The approach of Bernier towards India was always of comparing with European countries. He always compared Eastern countries with the Western countries. So, what he wrote in his accounts, he saw that Europe, the Western countries are much superior and much developed than the Eastern countries. He said that India is a country of poor people. He said that in India the situation is very bleak. Bleak means boring, empty, means nothing is here in India. Okay. On the other hand, Europe is much better and much prosperous than India. He dedicated his writing work to Louis XIV, that time of French ruler. उस समय का जो फ्रेंच रूलर लुई 14 थी, बर्नियर ने अपने सारे काम को उनको डेडिकेट किया, उनको समर्पित किया था. ओके. It is true that whatever is written by the Bernier is always not true. For example, he said that the Indian condition, the Indian economic and social condition is inferior to the European countries. It was not true, but it got so much success in Europe. So, whatever the accounts written by him, it was very popular in Europe and it was sold in high numbers. Bernier also wrote about the Eastern countries that India is a depressed country where the people are suffering. They are not having any sort of political or economic right. He said that on the other hand, European countries are very free and the people of the European countries are enjoying much better rights in that of countries like India. He gave
a very important theory of land ownership. Okay, ये 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बनता है that what was the theory given by Francois Bernier about land ownership. What was the theory given by Bernier about land ownership and how did this influence the other thinkers. तो बर्नियर ने लैंड ओनरशिप के बारे में क्या बताया? ही सेड दैट वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड द यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द इंडियन सोसाइटी. ही हैड अ फर्म बिलीव इन वर्च्यूज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. व्हाट डज इट मीन? He said that in India all the property is owned by the crown, means all the property, all the rights were in the hand of the king, and the common people were not having any property rights. They were not having any amount of money so that they can live any luxurious type of life. He said that the private property is lacking in India. Crown ownership of land was harmful for both state and its people. He thought that Mughal emperor owned all land and distributed it among the nobles. He argued that lands under the crown ownership could not be passed on to their children. What he said? All the land belongs to the king only. ये जो क्वेश्चन ऑफ ऑनरशिप की हम बात कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप की हम बात कर रहे हैं, ही सेड दैट ऑल द लैंड पजेस्ड बाय द किंग ओनली. द कॉमन पीपल आर नॉट हैविंग एनी शॉर्ट ऑफ लैंड. दे आर जस्ट डूइंग द एग्रीकल्चर इन द लैंड विच इज ओन्ड बाय द किंग, एंड द किंग डिस्ट्रीब्यूट्स हिज लैंड टू इट्स नोबल्स. ओके, सो बिकॉज इन इंडिया देर इज no type of private property or no type of private land ownership of available, so the people did not invest in the development of agriculture. They just lived their life at the existence level only. Why? Because all the property, all the land was owned by the king only. So जनता के पास, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई ऐसी इंकरेजमेंट की फीलिंग नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर करके अधिक फ़ायदा कमा सकें, क्योंकि वो सारा फ़ायदा किसके पास जाता था? किंग के पास जाता था, क्योंकि सारा लैंड किंग के पास होता था. अब इससे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? बिकॉज द कॉमन मैन और द फार्मर्स डिड नॉट इन्वेस्ट एनी टाइप ऑफ did not invest any type of hard work or did not invest any type of advanced technology in the agriculture. That's why it ruined the agriculture level and it distressed the rural society also. यहाँ लिखा हुआ देखिए, it had ruined the agriculture and oppressed the peasants, and the living standards of all sections in the society declined except the ruling aristocracy. So because there was no private land available for the people, so they did not invest any sort of investment in the agriculture. इससे कृषि को बहुत नुकसान हुआ और प्रोडक्शन में कमी आई, ऐसा बर्नियर ने कहा है. ये पॉसिबल है कि ये सही ना हो, लेकिन बर्नियर ने अपने थ्योरी में यही लिखा है. आगे बर्नियर क्या बताते हैं सोशल कंडीशन के बारे में? बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ अ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास. देयर वाज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास. देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया. मोस्ट important thing he said that only the two classes were existed in India. Upper class means rich class and the lower class means the poor class. There was no middle class, and the gap between these two classes was very wide because all the land, all the property was possessed by this high class society. What Bernier said about the
Mughal emperor and his subjects. Bernier described that Mughal empire as the king of beggars and barbarians. He said that Mughal emperor is the king of beggars and barbarians. मतलब भिखारियों का राजा कहा मुगल राजा को. क्यों कहा? क्योंकि भारत में लोगों के पास कोई लैंड और प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी राजा के पास थी. इसलिए वो राजा किनका राजा हुआ? बेगार्स और बारबेरियंस का. आई एम अगेन रिपीटिंग इट दैट इट वाज नॉट सो मच ट्रू. He said about the Indian towns and cities that they are contaminated with the ill air and all its fields are overspread with bushes and full of pestilential marshes. सब जगह पर एक पॉल्यूटेड हवा यहाँ पर बह रही है, सब जगह पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, उजाड़ सा वीरान सा भारत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड ऑनरशिप किसके हाथ में है? राजा के हाथ में. He attributed all these problems to the crown ownership of land. Okay. Bernier says that there was the practice of crown ownership of land and no private ownership of land or private property. So all the problem of India, like the condition of the people in poor condition, the people were not having any private property or private land because of crown ownership of land. बर्नियर ने जो कहा ये पूरे तरीके से सही नहीं था. ओके, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ अकबर्स रेन, अबुल फजल, the Mughal emperor collected only the remuneration from the people for the protection given by the state and no rent was collected. Okay, यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, but none of the Mughal official documents show that the state was the sole owner of land. Means whatever is written by the Bernier, it was only written his documents. It was not verified by the other मुग़ल डॉक्यूमेंट्स और अदर मुग़ल क्रॉनिकल्स. अबुल फजल ने कहा कि जो भी यहाँ पर राजा रिम्यूनरेशन ले रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है या कोई उपज का हिस्सा ले रहा है, प्रोडक्शन का हिस्सा ले रहा है, वो एक प्रोटेक्शन के बदले में उनसे मांगा जा रहा है. मीन्स राजा अपने लोगों को संरक्षण, मीन्स एक गार्जियन के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है. इसलिए लोग अपनी प्रोडक्शन के तौर पर उसको, राजा को कोई मनी या उपज का एक हिस्सा दे रहे हैं. कोई लैंड रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा अबुल फजल ने कहा था. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट द थ्योरी विच वाज रिटन बाय द बर्नियर, इट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द accounts or the economic or social condition what he saw in the Europe. He said that in Europe there was a private property. We discussed, or you all know, in the 11th class you studied that there were 3 states in European countries. First state of clergy, second of nobles and third of peasants. So वहाँ पर हर व्यक्ति के पास लैंड था, ऐसा बर्नियर कहते हैं, जबकि भारत में इस चीज़ का क्या था? अभाव था. अब बर्नियर की इस लैंड ऑनरशिप की थ्योरी में अदर यूरोपियन थिंकर्स को काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी इम्पैक्ट डाला. ठीक है, उसमें एक बहुत फेमस फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट एंड डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. ओके, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म को हिंदी में प्राच्य निरंकुशवाद कहते हैं. क्या है ये आइडिया? अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इन एशिया द किंग्स enjoyed absolute authority over his subjects and on all lands. There was no private property. All people except kings and noble struggled for survival. So the theory of oriental despotism given by Montesquieu, he said that
in India or other Asian countries, all the rights, all the property, all the authority in the hand of king only, and the common people doesn't have any sort of right or sources. तो ये जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का आइडिया था, ये किससे इन्फ्लुएंस होके आया? जो बर्नियर ने क्राउन लैंड ओनरशिप की थ्योरी दी थी उससे। एक और आइडिया या कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया। ये कार्ल मार्क्स की फ़ोटो यहाँ बनी हुई है। कार्ल मार्क्स ने क्या आइडिया दिया? वो भी क्राउन लैंड ओनरशिप की थ्योरी से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये लिखा हुआ है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ऑब्जर्व दैट बिफोर कॉलोनिज्म surplus production was appropriated by the state. This led to the emergence of society that was composed of a large number autonomous and egalitarian village communities. So what was given by the Karl Marx? What was the theory given by the Karl Marx? That before the rule of British, all the surplus production, whatever is produced by the peasants in India, it was taken away by the king only. Means जो भी यहाँ पर किसान एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे थे अपनी ज़रूरतों के अलावा, उपज यदि ज़्यादा उपज पैदा कर रहे थे, तो वो सारा सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन कौन ले लेता था? मुग़ल राजा या अदर किंग्स अपने एरिया के उस सरप्लस प्रोडक्शन को अपने पास ले लेते थे। मींस लोगों के पास जो इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा था उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। ठीक है, वो हमेशा गरीब स्थिति में ही बना रहता था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाने वाला सारा माल राजा के पास चला जाता था। और कार्ल मार्क्स ने ऐसा केवल इंडिया के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। मींस मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में इसी तरीके की प्रैक्टिस अपनाई जाती है जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन राजा के पास चला जाता है। बर्नियर आल्सो हिंटेड अबाउट द सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया। बर्नियर सेड दैट no incentive to improve the quality of their manufacturers. आर्टिसियंस के पास यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं था कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को सुधार सकें। क्यों? ऑल द प्रॉफिट्स वेयर टेकन अवे बाय द स्टेट्स। एट द सेम टाइम ही एग्रीड दैट vast quantities of the world's precious metals flowed into India as manufacturers were exported in exchange for gold and silver. अब सोचिए, उसी समय पर ये बात और कह रहा है वो कि because the Indian production was heavy in demand, the production like agricultural products, the metals of India and other artistic work of Indian artists, they were heavy in demand in European countries, and the European countries were paying gold and silver to buy these type of products. तो अब यदि बर्नियर की इस थ्योरी को हम माने तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क और एग्रीकल्चर वर्क बहुत इम्प्रूव्ड था, तभी तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो पा रहा था। ठीक है, और जबकि वो दूसरी ओर वो क्या कह रहा है कि इंडिया में आर्टिस्ट के पास कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं था अच्छा काम करने का, विलेजर्स के पास, फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अधिक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का। तो इन नटसेल वी कैन से दैट whatever is written by the Bernier, it is not fully truthful, because we know from the other sources also there was land which was owned by the people in India also. All land were not in the hand of the king. Bernier also wrote about the Mughal cities. What he wrote? He said that Mughal cities are like camp towns which were dependent upon imperial patronage. कैंप टाउन मतलब हिंदी में शिविर नगर, मीन्स
जहाँ राजा का दरबार लगता है वो सिटी काफ़ी डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट राजा ने अपनी कैपिटल, मुग़ल बादशाह ने अपनी कैपिटल आगरा को बनाया, तो सारा कोर्ट आगरा में लगता था, तो यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो जाती थी, लोगों को रोज़गार मिल जाता था, हर प्रकार के डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, ट्रेडर्स को, सब लोगों को मौका मिलता था उस शहर में अपना व्यापार करने का जहाँ पर मुग़ल बादशाह अपनी कैपिटल बनाता था। मान लीजिए आगरा से कैपिटल शिफ्ट होकर लाहौर हो जाती थी या दिल्ली हो जाती थी, तो आगरा शहर वीरान हो जाता था और एक नया कैंप, एक नया कोर्ट लाहौर या दिल्ली जैसे शहरों में लग जाता था, तो ये सिटीज़ डेवलप हो जाती थी। तो ये साइकिल चलता रहता था, जैसे जैसे मुग़ल बादशाह अपनी सिटी को, अपने कोर्ट को शिफ्ट करते थे, वैसे वैसे वो सिटी डेवलप होती जाती थी और पुरानी सिटीज़ वीरान या उजाड़ होती जाती थी। इसलिए बर्नियर ने इंडियन टाउन्स को कैंप टाउन्स कहा है। ही सेड दैट different types of towns were available in India, like manufacturing towns, pilgrimage towns, sacred centers, port towns, etc. The existence of towns indicates that prosperity of merchant communities and professional classes, because there was the prosperity for the trading communities. They were doing the trade with the other countries also in the Mughal India, so they were good in condition, they were rich पर्सनालिटीज़, दे वेयर कॉल्ड महाजन्स और सेठ, ये लिखा हुआ देखिएगा आप। वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को महाजन और सेठ की संज्ञा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा होता था, व्यापार करके ये बहुत पैसा कमाते थे। अब बात आती है वुमेन स्लेव्स, सती सिस्टम और लेबरर्स की। क्या था? जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने कॉमन पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा अपना विवरण या अपना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ओके, दे वेर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कॉमन मैन, स्पेशली टू द वुमेन कैटेगरी। उन्होंने इंडिया में पाई जाने वाली सोशल इनइक्वालिटीज़ को बड़ा नेचुरल माना। For instance, slaves were openly sold in markets like any other commodity and were regularly exchanged as gifts. Slaves के बारे में विविड डिस्क्रिप्शन दिया है इब्न बतूता ने, तो ये भी एक 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। That what was the description given by the Ibn Battuta about the slaves of India? What was the description given by the Ibn Battuta अबाउट द स्लेव्स ऑफ इंडिया? इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया में स्लेव एक कमोडिटी की जैसे कोई वस्तु बाज़ार में बिकती है, सिमिलरली द स्लेव्स वेयर कॉमनली बाय एंड सोल्ड इन द मार्केट्स। ओके, व्हेन इब्न बतूता रीच्ड सिंध, ही परचेस्ड हॉर्सेज एंड कैमल्स एंड स्लेव्स टू गिव द गिफ्ट टू सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सोचिए, गिफ्ट में उस समय स्लेव्स भी दिए जाते थे। देयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द स्लेव्स। सम स्लेव्स वेयर हैविंग द हायर क्वालिटीज, हायर क्वालिफिकेशन, अदर्स वेयर ओनली फॉर द डोमेस्टिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल, सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वेयर एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस, एंड इब्न बतूता एन्जॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर। तो जो फीमेल स्लेव्स होती थी, दे वेयर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस। फीमेल स्लेव्स वेयर आल्सो केप्ट फॉर द टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स ऑल्सो। फॉर स्पाई वर्क के लिए भी वुमेंस को रखा जाता था। वुमेंस को डांस, ड्रामा, म्यूज़िक एंड अदर कल्चरल आइटम्स को प्रेजेंट करने के लिए भी रखा जाता था। सो वुमेंस का जो रोल था एज अ स्लेव अलग अलग जगह पर अलग अलग होता था। तो जो वुमेन स्लेव्स हायर क्वालिटीज़ रखती थी, हायर स्किल्स रखती थी, दे वेयर हाईली पेड। ऑन दी अदर हैंड,
The normal women were only used for domestic labor, and Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women and men on palkis और डोला। ये देखिए आप, ये पिक्चर बनी हुई है, ये पालकी उठा के लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब स्लेव्स का यूज़ पालकी उठाने में, डोली उठाने में होता था। द प्राइस ऑफ स्लेव्स particularly female slaves required for domestic labor was very low, and most families who could afford to do so kept at least one or two of them। सोचिए आप कि the female slave who was only able to do the domestic work, he was very less paid, उसको बहुत कम सैलरी मिलती थी और उसको बहुत कम कीमत पर ख़रीदा भी जाता था। ओके, कम सैलरी मिलती थी इन द सेंस कि उसकी कीमत बहुत कम होती थी जब कोई व्यक्ति खरीदने जाता था उसको मार्केट में या किसी से ख़रीदता था, क्योंकि इनको सैलरी तो मिलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको गुलाम के तौर पर ख़रीदा जाता था। तो दे वेयर जस्ट गिवन दी डेली यूज थिंग्स, फूड, क्लॉथ वगैरह उनको प्रोवाइड करता था उनका ऑनर, ठीक है। उनकी कीमत उनको बेचने वालों को मिलती थी, ठीक है। तो जो वुमेन स्लेव होती थी, जो केवल डोमेस्टिक वर्क कर सकती थी, उनकी कीमत काफ़ी कम होती थी। बट ऑन दी अदर हैंड द फीमेल स्लेव्स हु वेयर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, दे वेयर हाईली पेड। आगे अपन देखते हैं। Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as a crucial marker of the difference between Western and Eastern societies। अब आप देखिए, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, they always compared the Eastern countries with the Western countries। They always compared the condition of the women in the countries like India is much lower, much inferior than the European countries। इसके लिए उन्होंने सती प्रथा का भी एग्जाम्पल दिया कि भारत जैसे देश में मजबूरी में लोगों को, महिलाओं को सती बनने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, ही नोटेड दैट वाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस द डेथ चेयरफुली, अदर्स वेयर फोर्स टू डाई। कुछ महिलाएं खुशी खुशी सती प्रथा को अपना लेती थी और कुछ को मजबूरी में चिता में जलने के लिए सती प्रथा के तहत मजबूर किया जाता था। सती प्रथा के बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सती प्रथा जैसा सिस्टम था या चाइल्ड मैरिज जैसा सिस्टम था इंडिया में, ये सारी चीज़ें इंडिया में वुमेंस की एक लोअर कंडीशन को शो करती थी। जबकि ऑन दी अदर हैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में वुमेन की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। दे वे आर इंजॉइंग द इकोनॉमिक राइट्स, दे वर इंजॉइंग द सोशल राइट्स एज वेल। सो these European travelers criticized the condition of the women in India। यहाँ पर जो इब्न बतूता ने स्लेव्स के बारे में लिखा, उसका आंसर एंड होता है जो हमने डिस्कस किया अभी। हमने क्राउन लैंड ओनरशिप डिस्कस की, हमने कंपैरिजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट डिस्कस किया जो बर्नियर ने बताया है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं some of the travelers who came to India and what they wrote। Travelers who wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices। जो और हमारे यहाँ पर यूरोपियन ट्रैवलर्स आए, उन्होंने क्या लिखा है देखिए आप। जेसुएट रॉबर्टो नोबेली, जो मैंने बताया था, एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे। उन्होंने कौन सा काम किया? ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। दुआर्ते बारबोसा, he wrote a detailed account of trade society in South India। He was also a Portuguese traveler। Tavernier, who was the French traveler, came to India 6 times। Okay, he was particularly fascinated with the trading condition in India and compared India to Iran and the Ottoman Empire of Turkey। मनुकी, जो इटालियन डॉक्टर था, उसने इंडिया की सोशल कंडीशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा और ही सेटल डाउन इन इंडिया ओनली, ही नेवर वेंट बैक टू यूरोप। पेलसार्ट, ही विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 17th century। ही वॉज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। उसने भारत की गरीबी के बारे में लिखा, पेलसार्ट जो आए थे।
अब्दुल रज्जाक जो इंडिया में ईरान से आए थे, उन्होंने विजयनगर का वर्णन अपने अकाउंट में किया है। ये जो हमने तीनों ट्रैवलर डिस्कस किए हैं उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी है। अल बरूनी 11वीं सेंचुरी, उज्बेकिस्तान से आए, अरेबिक लैंग्वेज में बुक लिखी, किताबुल हिंद बुक का नाम था। रूलर उनके समय में महमूद गजनवी थे, उन्होंने रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी आदि के बारे में लिखा है। अनदर वन वाज इब्न बतूता, केम इन 14th century फ्रॉम मोरक्को, रिटन इन बुक इन अरेबिक लैंग्वेज। द बुक वाज रहला in the time of Muhammad bin Tughlaq. He especially wrote about the unfamiliar things like coconut and pan, about the Indian cities and the postal system. The last one, the Bernier, who came in 17th century from France, wrote in English. The book name was Travels in the Mughal Empire in the time of Shah Jahan and Aurangzeb. He wrote about the ownership of land, towns and artisans also. So this was the whole lesson. We discussed the account of travelers. Thanks for watching this video. Thank you.